माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी भी ऐसे सुधार के विरोध में नहीं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, लेकिन हम ऐसे अधूरे और विरोधाभासी संशोधनों के खिलाफ जरूर हैं जो समस्या को हल करने के बजाय उसे और जटिल बना देते हैं। यह बिल सुधार नहीं, सांसद अध्यक्ष महोदय, 2016 में जब आईबीसी लाया गया था तो इससे भारत का आर्थिक व्यवस्था का गेम चेंजर बताया गया था। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर एन एंटिटी इज अनेबल टू पे इट्स आउटस्टैंडिंग, पर उस समय 2016 के अंदर जो बातें कही गई थी कि ये कोड टाइम बाउंड रिजोल्यूशन होगा, एनपीएस कम होंगे और सिस्टम एफिशिएंट बनेगा। लेकिन आज 2025 में सरकार खुद उसी कानून में बार बार संशोधन ला रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कानून इतना सफल था तो आज उसे बार बार बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह बिल सुधार नहीं बल्कि उस विफलता को स्वीकारित करता है। सरकार की नीति अध्यक्ष मैम निशिकांत दुबे जी डिस्टर्ब करते हैं हमेशा और मुझे अभी भी कर रहे हैं। अनुराग जी ने बोला किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया और आप हमें डिस्टर्ब ना करें। वहां पे थे तो वहां नहीं बोलने दिया, यहां आए तो यहां नहीं बोलना देना चाहते हो। माननीय सदस्य प्लीज। The bill fundamentally alters the balance of power in liquidation by extending the role of the Committee of Creditors (COC) into what was previously an independent quasi-judicial process. Under the current framework, once a company moves from resolution to liquidation, control shifts from COC to liquidator, appointed by the adjudicating authority. Let me ask the government, why is it appropriate to give such a sweeping power to a body that it itself is a stakeholder in the outcome? Creditors are not neutral arbiters. They have direct financial interest. How can they be expected to oversee liquidation in a manner that is fair to all stakeholders, including operational creditors, employees, and monetary claimants? The bill dismantles this balance. It allows COC not only to appoint the liquidator, but also to replace the liquidator with a 66% majority and supervise the liquidation process. In doing so, it effectively converts liquidation from an independent adjudicatory process into a credit-driven exercise. This raises serious concern. Creditors, by definition, are interested parties. Their objective is recovery, not necessarily fairness across all classes of stakeholders. When such parties are given supervisory control over liquidation, the risk of biased decision-making increases. The bill therefore comprises the neutrality that is essential in a process involving competitive claims. By removing these powers without clearly specifying an alternative mechanism, the bill creates a vacuum. Who will determine these dispute claims? Will parties be forced to approach the courts repeatedly? If so, this will increase delays, not reduce them. The stated objective of avoiding duplication between CIRP and liquidation ignores the fact that the roles of resolution professionals and liquidator are fundamentally different. The resolution professional merely verifies claims for the purpose of enabling resolution plans, whereas the liquidator adjudicates them for final distribution. This distinction has been recognized even by the Supreme Court. The bill introduces the Credit Initiative Insolvency Resolution Process (CIIRP), which is presented as a faster out-of-court alternative to existing corporate insolvency resolution process (CIRP). While the idea of reducing judicial burden and enabling quicker resolutions is welcome in principle, the decision of CIRP raises serious concern. To begin with, the rights to initiate CIRP is restricted to a select class of financial creditors as may be notified by the central government. This creates an unequal playing field among creditors. Why should only certain financial institutions have access to this mechanism, while others, including operational creditors and even non-notified financial creditors, are excluded? The bill provides no clear rationale for this selective
empowerment. है नहीं ताई इनके पास में. Furthermore, there is a clear risk that CIRP will remain underutilized because the possibility of other creditors initiating CIRP earlier. The bill explicitly states that CIRP cannot be initiated once CIRP has commenced. In practice, companies often default on operational dues such as salaries, rent, supplier payments before defaulting to large financial debt. Operational creditors who have full access to CIRP may initiate proceedings before financial creditors can coordinate and trigger CIRP. As a result, the supposed advantage of CIRP as a preemptive or alternative mechanism may be lost. So, ma'am, lot of has been said by the NCLT also. NCLT, ma'am, आज की तारीख में अगर आप देखोगे, NCLT में आज की तारीख में इस बिल कहेगा कि NCLT ये तय करेगा कि कोई केस मैलाफाइड है कि नहीं है. मैलाफाइड की डेफिनेशन क्या है? The moment you give this power to a person, to NCLT to decide the malified intention or malified practice, who is going to decide that? क्या ये क्लियर गाइडलाइंस है? बिल्कुल भी नहीं है. क्या यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि हर ट्रिब्यूनल अपनी इंटरप्रिटेशन देगा और उसे आर्बिट्रेरियसनेस बढ़ेगी. पहले सिस्टम फास्ट था, अब अनसर्टेन हो गया है. सरकार एक इकोनॉमिक प्रोसेस को लीगल एम्बिग्यूटी में धकेल रही है. NCLT ये मैम 15 मिनट्स है मेरे, मैंने 15 मिनट्स हैं. 15 मिनट्स है मैम. आप बीच में बेल बजा रहे हैं. 6 मिनट हुए. The bill focuses on process design IBC rules NCLT, but it requires NCLT reforms in judicial institutional. It's suffering from problems such as shortage of benches, vacancy of members, limited technical members. NCLT की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैडम आज की तारीख में. Why doesn't the bill address any on this? बजट एलोकेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स नहीं है, रिक्रूटमेंट के रिफॉर्म्स नाम की कोई चीज़ नहीं है. अभी हमारे एक साथी ने वहाँ से कहा था कि NPS के बारे में. NPS की तो दास्तान इतनी बड़ी है कि आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी दे दिया, पर मैं NPS के बारे में तो जानता नहीं, पर NPG के बारे में जरूर जानता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बन चुकी है. इसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती और आपने निकम्मी सरकार 12 से 16 लाख करोड़ रुपए का बैंक से राइट ऑफ किया. आई अंडरस्टैंड कि राइट ऑफ है, वो माफ नहीं है, पर कितना परसेंट पैसा आया? काफ़ी एग्जाम्पल्स हमारे साथियों ने अलग अलग कंपनीज के दिए हैं. आज PM किसान सम्मान निधि के बारे में बात चली है. अच्छा है, 17 रुपए की आप पर दिन देते हो किसान को, इसका सम्मान बढ़ाने के लिए साल के 6,000 रुपये देते हो, पर उस 17 रुपये की चिंता हमें इतनी इस बात के लिए है कि जिस दिन चुनाव इन 5 राज्यों में खत्म होंगे, 17 रुपये की कीमत आप डीजल की बढ़ाने वाले हो, जो 17 रुपये वहीं खत्म हो जाएंगे. किसानों का जो लोन आज की तारीख में, एक तरफ आपने 12 से 16 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया. किसानों का लोन इस कंट्री में आज की तारीख में 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास है. मेरे स्टेट राजस्थान के उसमें 60 to 65% शॉर्ट टर्म लोन है जो हम क्रेडिट लोन लेते हैं. बाकी ट्रैक्टर्स, डेयरी और अदर इंस्टीट्यूशन. राजस्थान के अंदर 1.5 से 2 लाख करोड़ का लोन है. 1 से 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का फार्मर का लोन आज बैंक के थ्रू किसानों के पास में है. क्या उनके बारे में भी सरकार के भी सोचेगी कि राइट ऑफ जब करे जाते हैं तो क्या इन किसानों के भी जो ये कृषि ऋण है इनको माफ करने की सरकार कोई सोचती है? MSME के बारे में इस बिल के अंदर इसको इतना टाइटली कर दिया गया है कि 13 सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी barely 13 MSME cases have been admitted with only 5 seeing resolution. On vulnerability of MSP operational creditors, the current framework does not adequately protect MSME operational creditors in the liquidation waterfall. As a result, small enterprises often receive negligible recoveries despite being critical to the supply chain. This creates an imbalance where those with the least capacity bear the highest losses. There is a need to ensure a minimum level of protection or assured recovery for MSME to maintain fairness in the system. सभापति महोदय, बहुत सी बातें और भी हैं, पर आपने समय के जवाब में मैं इतना कहना चाहूँगा कि द बिल अलाउज क्रेडिटर्स टू ट्रांसफर एसेट्स ऑफ गारंटर्स इनटू CIRP ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स. If the guarantor is already undergoing a separate insolvency or bankruptcy process, how will conflicts of jurisdiction, overlapping claims and competing creditor interests be resolved? Nobody understands that. And मैं
Government does not understand. मैं मैम लास्ट में 2 बातें और भी कहना चाहूँगा कि बार बार जो ये पॉलिसी में बदलाव आता है, 2016 से आज तक 70 से ज़्यादा बदलाव इस अमेंड बिल में आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास न कोई क्लियर लॉन्ग टर्म विजन है, पॉलिसी में लगातार बदलाव लाते जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स क्या चाहते थे कि स्टेबिलिटी हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, लेकिन यह बिल अनसर्टेनिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। सिस्टम का मूल मतलब होता है कि ये बिल सिर्फ अमेंडमेंट नहीं है, ये सिस्टम की फिलॉसफी को ही बदल रहा है। पहले मार्केट ड्रिवन की बात की जाती थी, अब कोर्ट ड्रिवन हो जाएगा। पहले स्पीड की बात थी, अब डिलेड रिस्क होंगे। पहले सर्टेनिटी की बात थी, अब एम्बिग्विटी होगी। मैं ये बात भी साथ साथ मानता हूं कि सरकार से मैं कुछ सवाल भी करना चाहूँगा कि मैं सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या NLC-LT की कैपेसिटी और रिफॉर्म्स बढ़ाने की कोई योजना आपके पास में है? मैलाफाइड की क्लियर डेफिनेशन क्यों नहीं दीगी और क्या होनी चाहिए? डिलेज कम करने के लिए कंक्रीट मैकेनिज्म क्या होगा? COC की पावर करने का जस्टिफिकेशन क्या है आपके पास? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, ये बिल अधूरा ही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बिल कुछ समस्याओं को छूता जरूर है, लेकिन समाधान पूरा नहीं। यह सुधार नहीं बल्कि पैचवर्क है। ये क्लैरिटी नहीं बल्कि कंफ्यूजन को बढ़ाता है। ये स्पीड नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। अंत में मैं 4 लाइनें जरूर कहनी चाहूँगा। देश को मजबूत और स्थिर आर्थिक कानून चाहिए, न कि बार बार बदलते हुए प्रयोग। जब तक सरकार सिस्टम को मजबूत नहीं करती, तब तक ऐसे संशोधन केवल समस्याओं को टालने का काम करेंगे, हल करने का नहीं। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। माननीय मैडम निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं। जी बोलिए माननीय सदस्य निशिकांत जी। मैंने मेरा नाम लिया, मैंने एक छोटी सी बात कही स्पीकर महोदया कि जब आईपीसी लेकर हमारी सरकार आई, तो इस तरफ से इसी राहुल कासवा ने उस बिल के समर्थन में लंबा चौड़ा भाषण दिया। ये जॉर्ज फर्नांडिस के दूसरे रूप है। यही मैं कहना चाहता था कि आप जाकर उधर से विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री PP